Hello everyone, welcome back to the program Spoken English. This is Dr. Arias Moria helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to speak concisely, confidently, grammatically and fluently in a given situation. Guys, हम फिर इस प्रोग्राम में हैं कि आपको स्टेज पर कैसे बोला जाए और इसमें हमने एक सेमिनार का हमने एक फॉर्मेट दिया था कैसे बोला जाना चाहिए और आपके सामने पिछले लेक्चर में हमने उसको दिया था। अब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर था। अब उसी चीज़ को हम फिर से लेते हैं। द सेम कंटेंट आई रीटेक एंड उसके एनालाइज करते हैं। दिस टाइम वी एनालाइज पॉइंट वाइज। पहले उसमें तो हमने कॉन्सेप्ट ऐसे बाय एंड लार्ज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया। इसमें विल एनालाइज वन बाय वन हाउ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गुड फॉर अस एंड देन आल्सो नॉट फिट फॉर अस। तो लेट्स सी let us begin the lecture as goes in a seminar. So Mr. Chairman, Professor Ranjit Sinha, respective heads of departments, present dignitaries, colleagues and my dear students, this is a proud moment for me to speak before you on the issues which has undergone us, that is a new education policy and its effect on students, guardians and society. So in previous lectures we had only seen the concept of the new education policy. Now the time has elapsed, 2 or 3 years elapsed, and its effect is being known, felt. So let us see what is the effect of new education policy. So in the previous lectures we have talked about some moot points that constitute the new education policy. Some important features were the content and intent of new education policy, national uniformity, talent and technology. We talked about multiple intents and exits, employed and unemployability, the college's ultimate status of autonomy. We all talked about this in previous lectures. In previous lectures we have also conceptualized the national education policy, but in this lecture we will go point-wise discussion and we will see in an evaluating mood. So let's analyze some points related to these reforms by new education policy. The right to get free education up to the age of 14 has been retained in national education policy. To extend it up to 18 years, that's very good move. So yes, it is a good move. Before that we had this free education up to 14 and in 80 something, और अब जो है वो बढ़ा करके 18 कर दिया. That is very good thing. This is positive move. The right to get free education. A midday meal, as it is, the NEP has added a breakfast that is too good. It's also good that midday meal was given and students enjoyed it. तो अभी तो breakfast भी is added to that. That is also a welcome move by the government. Dropout rate in school should be checked with the assurance of 100% students be continued up to school level. That is, yes,
giving meal and breakfast was directly indicative of the fact that government wanted to raise the continuity of the students, presence of the students in schools. So it is hoped that some presence will increase. Early childhood care education has been taken into focus. 3 years of early schools with a breakfast and meal plus exhaustive care will be good plans. Yes, schools, some good things have been given. Care also, breakfast also, meal also, and some assistance by the government, central government. So this will all help. For this special recruitment of teachers is good, but what should be a teacher student ratio, it is not mentioned. This has been also mentioned that special training would be given to the teachers, especially child care, जो चाइल्ड केयर, तो चाइल्ड केयर में 1-2 पेपर होते हैं, उसमें स्पेशली उसमें ऑल द टीचर्स वुड बी ट्रेन्ड एंड विल बी गिवन वर्कशॉप सो दैट दे कैन लर्न. तो दैट इज़ गुड थिंग, बट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ नॉट clearly stated that what should be the teacher and student ratio. That is very important thing. This has been not discussed at all. कि कितने टीचर होने चाहिए एक क्लास में और कितने स्टूडेंट होने चाहिए, पर स्टूडेंट क्या रेशियो होना चाहिए, इसको नहीं दिया. जैसे आइडियल ये है कि 20 ये स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए ऐसे. तो अगर इस तरह का है या 15 पर 1 होना चाहिए, तो किस रेशियो में होना चाहिए ये नहीं. तो टीचर का कमी होना ये तो स्वाभाविक सा हो जाता है. इन स्कूल्स द डिवीजन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स is broken and access to study of all subjects. Yeah, that is good thing. The schools say science side, arts side, commerce side, this all has broken, and then it is made that all students are to study all the subjects, almost all the subjects. So that is good thing, because at this stage they require to have a knowledge of almost all the subjects, science, arts, commerce. That is also ये good, ये अच्छा चीज़ है. NCERT has preparing books for school children. That is good. Yes, it is also heard कि किताबें NCERT की बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत मेहनत करके उसको बनाया जाता है. बहुत अच्छे प्रोफेसर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, with all their psychological insight, with all their training, so they put their labor. तो बुक्स तैयारी जो NCERT कर रहा है और किया भी है, जो बुक्स निकली हैं अच्छी हैं, तो that is good thing. HRD minister is now education minister. Earlier it was the same. हाँ, ये चेंज किया मोदी जी ने कि जो एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था उसको बढ़ा करके HRD डिपार्टमेंट कर दिया. तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर दिया, फिर चल करके उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया. तो ये चीज़ है. जब सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद साहब, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर ही लिखते थे. उनके समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, एजुकेशन मिनिस्ट्री होता था, तो फिर वही चीज़ हो गया. सही चीज़ है, अच्छा. दैट इज ए चाइल्ड इन इज अर्ली चाइल्डहुड वुड बी टॉट इन हिज ओन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज. ये एक और अच्छी चीज़ है कि बच्चे को अपने ही
लोकल लैंग्वेज में या अपनी मातृभाषा में उसको सिखाया जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अंग्रेज़ी या हिंदी में न सीख करके अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में सीखें तो ये ज़्यादा सफल होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, दैट इज़ गुड थिंग। इस पर रिसर्च भी किया गया या ये इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस पर राय भी ली गई थी सबसे, और ये किया, अच्छा हुआ। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, लिबरलाइजेशन ऑफ स्टडीज़ और ऑल्सो गुड। हाँ, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड पढ़ाई का में बहुत ये वी हैड अ टाइट कंपार्टमेंट कि साइंस वाले ये पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले ये पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले, म्यूज़िक वाले, ये सब। तो जो एक न्यू चलन हो गया है वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ हो गया है, तो जिसमें हम लोग खुद जो है बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग संस्कृत की क्लास में जाते हैं और वहाँ पर पॉलिटिक्स पर लेक्चर देते हैं, या संस्कृत वाले अंग्रेजी विभाग में आ जाते हैं तो वो लोग जो है किसी चीज़ पर लेक्चर देते हैं। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। तो एक तो जो सब्जेक्ट का बंटवारा वो ख़त्म हुआ और फिर मल्टी डिसिप्लिनरी जो ये है, और लिबरलाइजेशन ऑफ स्टडीज़ और ऑल्सो। हाँ, आपको जो अच्छा लगे और जो यूज़फुल है, यू कैन स्टडी व्हाट एवर इज़ यूज़फुल टू यू, आप उसको पढ़ें और आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि आप पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और जो जो इसमें कुछ खामियां रह गई हैं उसमें यह है कि द NAP is to be implemented, it requires a lot of capital। तो हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है, जब आप कोई सिस्टम शुरू करते हो तो उसके लिए आपको पहले वो फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा हुआ कि एजुकेशन को 7% बजट अलॉट करने की बात है, 7 से 7, 8, 9, लेकिन कभी भी 3 या 4% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर बजट नहीं खर्च किया, ये फैक्ट है। तो हम लोगों के पास पैसा नहीं है, ये तो ये चीज़ है, और उस पर जो है वो लोग बात भी नहीं करते, प्लानिंग इज़ नॉट मेड। तो 6% GDP ये सब कुछ नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है एजुकेशन पर GDP भी लगा दिया, तो ये तो पहली बार हुआ, अच्छी बात नहीं थी। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स विल बी great hindrance, they not only flout that, yes, problem is with the private schools। जो अच्छी चीज़ें हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो है इतने डोमिनेटिंग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जितने भी पॉलिटिकल जो अच्छे बिग गन्स होते हैं, बिग बॉस होते हैं, दे हैव ऑल स्कूल्स। व्हाई दिस पॉलिटिशियन they take interest in education? At least I don't understand why politicians are so much interested in academics। तो ये उनको एकेडमिक्स से लेना देना भी नहीं, फिर भी वो स्कूल खोले जा रहे हैं। तो साफ मतलब है किसी वजह से पैसा कमाना, किसी वजह से। तो ये लोग वही करते हैं, सारे जो नियम कानून होते हैं ये सब उधर के उधर कर देते हैं, और गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती उनकी, क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, वो सब पॉलिटिशियंस के हैं और वो पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और किया भी नहीं है अभी तक। जो है हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हम 300 बेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं आते। कुछ दिन पहले एक आध केस ऐसा एक्सेप्शन में आ गया, लेकिन अभी भी जो है हम जो है अंडर 10 में कभी नहीं आए, अंडर 20 में भी कभी नहीं आए बेस्ट यूनिवर्सिटी में, अंडर 40 में भी नहीं आए, अंडर 100 में भी नहीं आए। समझ लीजिए इतना ये होते हुए।
क्योंकि एजुकेशन पर हमारी सरकार कुछ खर्च करना भी नहीं चाहती, न बोलना चाहती है, न एजुकेशन को मुद्दा बनाना चाहती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट टू नोट कि एजुकेशन को कभी मुद्दा नहीं बनाती। हाँ, ये होता है कि ये चीज़ बनाए, ये चीज़ बनाए, लेकिन जब बजट होता है तो वो सिर्फ 4% 5%, जबकि 7% बहुत पहले ही से कर रहे हैं। सब कहते समय 7% कर देंगे, 8%, और कहीं कहीं तो 9-10% भी है किसी किसी देश में। तो वहाँ एजुकेशन की हालत बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ लोग यहाँ पैसा नहीं है, तो दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, ये vocation education which starts from 6th standard should be honored by the university। हाँ, हम लोगों ने कुछ वोकेशन एजुकेशन स्टार्ट किया। वोकेशन एजुकेशन का मतलब होता है कि कुछ करने की स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन। तो ये 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। एक बहुत बड़ी आयरनी है, एक इसी तरह से एक फैक्ट्री का मालिक जो है एक प्रिंसिपल को अपने यहाँ ले गया, उसने दिखाया कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ 10 पास के लड़के आते हैं, हम वो 6 महीने में ट्रेनिंग दे देते हैं और बहुत अच्छा करने लगते हैं। और वहाँ पर जो 12th क्लास के स्टूडेंट आते हैं वहाँ ट्रेनिंग करके कर देते हैं। तो ऐसे करके दिखाया जा रहा था। फिर बाद में वो मैनेजर ने पूछा, सर आप लोग 16 साल 16 ईयर्स आप पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? जब आप उनको ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते जिससे उनको रोजी रोटी चले, तो पढ़ाते क्या हैं? व्हाट डू यू टीच इन 10 ईयर्स और 12 ईयर्स और 14 ईयर्स और 15 ईयर्स और 20 ईयर्स? आप पढ़ाते क्या चीज़ है? बड़ी शर्म की बात है। हमारे यहाँ तो 6 महीने में आते हैं, हम सबको ऐसा बना देते हैं, कोई भी चीज़ जिस डिपार्टमेंट में है सब सीख जाता है। लेकिन व्हाट डू यू टीच? स्टूडेंट्स डिवोट their prime life, tender age, और it is spoiled। तो बहुत सोचने की बात है। तो अगर स्किल एजुकेशन की बात है तो शुरू से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों बाद में इधर उधर करने लगते हैं? तो स्किल एजुकेशन का मतलब है कि आपके पास लेबोरेटरी नहीं होता, कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए लेबोरेटरी नहीं होता, कोई भी काम जैसे वुड क्राफ्ट कोई क्राफ्ट पढ़ाने के लिए नहीं लाइब्रेरी है, टीचर नहीं है, बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। अगर मोटिवेट करके उनको जो है वो रिक्रूट नहीं कर पाते, रिक्रूट करके उनको प्लेसमेंट नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें हमारे देश में हैं जो कि अभी तक सुधरी नहीं। देन philanthropic concept on which this education should be made public। तो philanthropic concept तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, philanthropic concept होना चाहिए कि philanthropic ऑर्गेनाइजेशन हो जो डोनेट करे, जो स्कूल खोले और काम करे, ये अच्छा है। लेकिन फिलैंथ्रोपिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इसलिए नहीं होते कि उनमें वो दे फेल टू गिव पेमेंट टू देयर टीचर, दे फेल टू मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, ये आधा अधूरा रह जाता है। व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स? स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए हमारे यहाँ में जितने तरह के स्कूल हैं उतने तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी में कुर्सी टूटी है, किसी में मेज टूटा है, किसी में अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर लेकर के 20% स्कूल भी नहीं है जो एक क्राइटेरिया जो है एक नॉर्म्स रखें, तो दैट इज़ ऑल्सो ए साइड स्टोरी ऑफ एजुकेशन। एंड नो कॉम्पिटेंट टीचर टू टीच। हमारे यहाँ कोई अच्छा आदमी टीचर बनना ही नहीं चाहते। अगर अच्छे लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, वो टीचर नहीं बनना चाहते। द सिंपल रीज़न इज़ दैट
teachers are not given that respect which is given by other countries, which other countries used to give. यहाँ पर कई ढंग के टीचर, कुछ तो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो गवर्नमेंट टीचर 30% है, 70% प्राइवेट टीचर्स हैं, एंड दे आर होल्डिंग द पोजीशन, तो उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, कम पैसा दिया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका ख़राब होता है। तो इस तरह की गवर्नमेंट का कोई एक नहीं है। कोई भी स्टेज, चाहे प्राइमरी 1 to 5 ही, अगर वो सब एक जैसा हो, हमारे यहाँ 1 to 5 स्कूल जो है सब एक जैसे हों, तो ये देश कहाँ से कहाँ चल जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो है ये प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, जो बेचते हैं, सब ड्रेस बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं, और साल भर में कितना पैसा कमाते हैं। दे सक द ब्लड ऑफ द गार्जियन, वो बर्बाद कर देते हैं, और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं होता। इंग्लिश के नाम पर, इन द नेम ऑफ इंग्लिश, दे यूज्ड टू अर्न लॉट ऑफ मनी, एंड द रिजल्ट इज व्हेन स्टूडेंट्स कम आउट, they cut a sorry figure. They neither can converse in English, they don't have a comprehensive power, and they don't have the proficiency in a good English. So that's what is going on. So these are the some drawbacks, guys, and one I think I should बुक्स जो है, एक बुक्स नहीं हो सकता क्या, एक किताबें प्राइमरी की क्लास 5 तक सब जगह वही पढ़ाई जाए, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। जो कुछ ये हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। वो अपनी किताब अलग से ही उसमें लगाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, और उनको कुछ कर नहीं सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वही लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियंस ही वहाँ हैं। एजुकेशन, दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट, दे आर पॉलिटिशियन टर्न एजुकेशनिस्ट। वो कमाने के लिए सब अपने सब जितने भी नेता हैं, सब ने कुछ न कुछ स्कूल्स कॉलेज खोल रखे हैं, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ करप्शन इन एजुकेशन। तो that's all for today. Thank you very much.